Hello everyone, welcome to NCERT Physics by Amit Patel, chapter number 3, lecture number 3.12. Today we are going to solve exercise numerical of third unit current and electricity. This will be our last lecture, and from next lecture we will start fourth unit moving charge and magnetism. So I request you all to watch full video and practice the numericals. Chalo, so starting from the first numerical of exercise. First numerical, the storage battery of car has an EMF of 12 volt. If the internal resistance of battery is 0.4 ohm, what is the maximum current that can be drawn from the battery? आपको क्या फाइंड आउट करना है? मैक्सिमम करंट. और देखो यहाँ पे आपको क्या गिवन है कि EMF ऑफ बैटरी गिवन है और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है 0.4 ओम. ठीक है, चलो तो इनको कैलकुलेट करते हैं. तो देखो यहाँ पे सर्किट कनेक्शन मैंने बना दिया. ये बैटरी का ईएमएफ है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड दैट दिस इज आवर रेजिस्टर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर. तो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा आपकी मैक्सिमम करंट आपको क्या मिलेगा और कब मिलेगा. तो फॉर मैक्सिमम करंट, तो एक कंडीशन है फॉर मैक्सिमम करंट थ्रू द सेल योर एक्सटर्नल सर्किट रेजिस्टेंस शुड बी मिनिमम, एंड इट मीन्स फॉर मैक्सिमम करंट आई कैन कंसिडर इट एज 0 ओम. ठीक है, ये इनको मैं क्या कंसिडर कर सकता हूँ, 0 ओम. देन द करंट विल बी मैक्सिमम थ्रू दी सर्किट. सो दिस इज इक्वेशन फॉर आई इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर प्लस आर. बट एज यू से इट फॉर मैक्सिमम करंट रेजिस्टेंस शुड बी 0 ओम, सो आई मैक्सिमम विल बी ई डिवाइड बाई आर. E is your EMF and that is given as a 12 volt. R is internal resistance which is given a 0.4 ohm. So this will be 12 divided by 0.4 and this will be 30 ampere. So 30 ampere will be maximum current. ठीक है, तो ये आपका क्या होगा आंसर. चलो सेकेंड न्यूमेरिकल. A battery of EMF 10 volt, internal resistance of 3 ohm is connected to resistor. EMF is given, internal resistance of battery is given as a 3 ohm, is connected to resistor, some resistor you can say R. If the current in the circuit is 0.5 ampere, आपको current भी given है. What is the resistance of resistor and what is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed. देखो सेम इक्वेशन आपको ये वाली यूज़ करनी है. यहाँ से आप R फाइंड आउट करोगे और टर्मिनल वोल्टेज के लिए क्या होगा, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर. चलो देखते हैं इनका सॉल्यूशन. सेकेंड न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन देखो. गिवन डेटा इज EMF ऑफ 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम, करंट 0.5 एम्पियर एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R हमें फाइंड आउट करना है. सो यू नो द रिलेशन I इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई R प्लस आर. यस और नो. ठीक है, R हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. So this will be, I will be replaced as a 0.5 EMF 10 divided by R plus internal resistance 3. So simplify this equation, we will get like this: 0.5 R plus 0.5 into 3, 1.5 is equal to 10. So R will be 17 ohm. This will be your circuit external resistance, this R. ठीक है. एंड सेकेंड कैलकुलेशन आपको ये पूछा है, दैट इज ऑल्सो फाइंड आउट द टर्मिनल वोल्टेज. तो देखो ये रिलेशन सबको याद है, यू नो द रिलेशन टर्मिनल फॉर टर्मिनल वोल्टेज. ठीक है, सो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर. V इज योर टर्मिनल वोल्टेज, E विल बी योर EMF ऑफ द सेल, I will be current and small r will be internal resistance. So as per given data, E is equal to 10 volt, current is given as a 0.5 ampere, current is given 0.5 ampere. ठीक है, तो 0.5 internal resistance of cell is given as a 3 ohm. So this terminal voltage across the cell, ठीक है, will be 8.5 volt. So this will be your terminal voltage across the cell. समझ में आ कि नहीं, क्लियर. चलो फिर थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं. 3 रेजिस्टर 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are combined in series. What is the total resistance of combination? And if the combination is connected to battery of 12 volt,
and negligible internal resistance, obtain the potential drop across each resistor. क्वेश्चन आप रीड कर लो एक बार ध्यान से, ठीक है। अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, चलो देखो यहाँ पे, इसके अंदर नहीं करना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सबको पता है ना, सबको पता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा। तो RS किसके बराबर होगा, R1 + R2 + R3, so total resistance will be 1 + 2 + 3, so this will be 6 ohm। ये कितना होगा आपका 6 ohm RS, यस और नो। अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल गया, फिर सेकंड आपको पूछा है फाइंड आउट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर। तो अगर मैं इनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप चेक करूँ तो V1 क्या होगा, I × R1, I1 R1, लेकिन I1 = I2 = I3 = I, सबको पता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर विल बी सेम। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सेकंड रेजिस्टर विल बी IR2 and voltage drop across third resistor will be IR3. So first you will need to find out the value of current. So equation है हम सबके पास, we have a relation between current, voltage and resistance. So current through the circuit I will be, I is equal to V divided by total resistance of the circuit. V is a 12 volt, resistance of circuit is a 6 ohm, so 12 divided by 6, this will be 2 ampere. So current through the circuit is 2 ampere. So now we can easily find out the voltage drop across each resistor. Look at here. So first voltage drop across R1, so V1 will be IR1, value of current to R1 resistor is 1 ohm, so this will be 2 volt. Voltage drop across first resistor will be 2 volt. Same second के लिए voltage drop across second resistor V2 will be IR2, so this will be value of current 2, resistance R2 is 2 ohm, so this will be 4 volt, yes or no. Voltage drop across second resistor, and across third resistor V3 is equal to IR3. So again I replace the value I2, R3 will be 3, so this will be 6 volt. Add the 3 voltage, 2 + 4 + 6 कितना होना चाहिए आपका 12 volt. तो सबको समझ में आ कि नहीं ये न्यूमेरिकल्स, यस और नो, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, 3 resistor 2 ohm, 4 ohm and 5 ohm are combined in parallel. What is the total resistance of the combination? If the combination is connected to battery of a 20 volt, source किसके कितना आपका 20 volt का source है, ठीक है। In negligible internal resistance, determine the current through each resistor and total current drawn from the battery, ठीक है। क्लियर, आपको क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, फिर हर एक रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 20 वोल्ट सोर्स, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। इन टोटल करंट एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, तो ध्यान दो यहाँ पे। तो देखो सर्किट यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया आपके लिए, ठीक है। तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप सबको पता है कि व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। Equivalent resistance in parallel combination, this will be 1/Rp is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3, 1/2 plus 1/4 plus 1/5, so 20 will be your LCM here, yes or no, ठीक है। सो दिस विल बी, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाइड करोगे, यहाँ पे 5 से और यहाँ पे 4 से, तो 1/Rp, सो 1/Rp इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 19, सो Rp विल बी 19 डिवाइड बाई 20 ohm, so this will be your equivalent resistance
इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सेकेंड वी हमें पूछा है सेकेंड की आल्सो फाइंड आउट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ईच रेजिस्टर। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आपकी वोल्टेज ड्रॉप सेम रहेगी। हमें पूछा है करंट के बारे में, ठीक है, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। तो वोल्टेज ड्रॉप सबके लिए क्या रहेगा, सेम। तो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V, यस और नो। तो मैं ऐसे करंट की इक्वेशन लिखूँ कि करंट थ्रू द रेजिस्टर 1, करंट थ्रू रेजिस्टर 1 will be I1 is equal to V1 divide by R1, लेकिन V1 is equal to V, तो V divide by R1, so V voltage is given as a 20 and R1 is 2, so current through the first resistor will be 10 ampere, yes or no। For second resistor, current through the second resistor I2 will be V divide by R2, 20 divide by 4, so this will be 5 ampere, yes or no। Current through the third resistor R3 will be I3 V divide by R3, so this will be 20 divided by 5, so this will be 4 ampere। And total current I will be I1 plus I2 plus I3, so 10 plus 5 plus 4, so this will be total 19 ampere। ये आपका टोटल करंट आई होगा। ये कितना होगा आपका 19 एम्पियर। समझ में आके नहीं सबको, एकदम सिंपल है ना, बेसिक न्यूमेरिकल है, ये आपने क्लास 10th के अंदर भी किया होगा, यस और नो। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5। एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। ये रूम टेम्परेचर पे रेजिस्टर है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम, गिवन दैट टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ मटेरियल ऑफ द रेजिस्टर इज 1.70 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो आपको सेकेंड रेजिस्टर, ये रेजिस्टर पे कौन सा टेम्परेचर होगा वो फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पे नोटेशन में ना R27 है, ठीक है, RT लिखा है, मैं अपनी वही इक्वेशन वाली नोटेशन लिखता हूँ। एक रेफरेंस टेम्परेचर होगा और एक आपका कौन सा होगा, सेकंड गिवन फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, तो आपको ये रिलेशन याद है ना सबको कि R0 इज इक्वल RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा T माइनस T0। ठीक है, यही रिलेशन में यूज़ कर रहा हूँ। चलो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो T0 होगा वो मेरा क्या होगा, रेफरेंस टेम्परेचर। सो T0 इज़ गिवन एज अ 27 डिग्री सेल्सियस, T0 इज़ गिवन एज अ 27 डिग्री सेल्सियस। न्यूमेरिकल नंबर 3.5, 27 डिग्री सेल्सियस। R0 रेजिस्टेंस एट अ रेफरेंस टेम्परेचर इज़ गिवन 100 ओम। टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है, कौन सा T टेम्परेचर जहाँ पे रेजिस्टेंस कितना होगा 117 ओम, तो वो T टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है। एंड सेकेंड थिंग, टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फ़ा इज़ गिवन एज अ 1.70 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। सो सिंपली अप्लाई द फार्मूला कि RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा T माइनस T0। चलो सिंप्लीफिकेशन करो। RT इज गिवन 117, R0 इज गिवन 100, 1 प्लस अल्फ़ा 1.70 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4, T माइनस T0 इज गिवन 27 डिग्री सेल्सियस, यस और नो, हाँ कि ना। ठीक है, सो दिस विल बी डिवाइड बाय 100, तो दिस विल बी 1.17 इज इक्वल टू 1 प्लस 1.70 10 टू द पावर ऑफ -4 T माइनस 27। क्या किया मैंने, इनको 100 से डिवाइड किया। ठीक है, चलो ये 1 लेफ्ट साइड जाएगा तो ये क्या बनेगा 0.17, 1.70 10 टू द पावर ऑफ -4 T माइनस 27, यस और नो। ठीक है, फिर देखो कि यहाँ पे मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ कि 0.170
10⁻⁻3। अगर लेफ्ट साइड डेसिमल करोगे पावर +1 करोगे तो ये क्या होगा -4, t -4 का क्या होगा -3, t -27, और ये क्या होगा 0.17। इनको कैंसिल कर दो। सो दिस विल बी 1/10⁻³ t 27। सो दिस विल बी 1000 plus 27, this will be your t, so t will be 1027 डिग्री सेल्सियस। ये आपको टेम्परेचर मिलेगा। समझ में आ कि नहीं, यस और नो? चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट न्यूमेरिकल। A negligible small current is passed through a wire of a length of 15 meter. Length of wire is given as a 15 meter and a uniform cross sectional area. Area is given 6 into 10⁻⁻7 meter square. Resistance is measured to be 5 ohm. Resistance आपको given है. What is the resistivity of material at the temperature of the experiment? आपको क्या find out करना है? resistivity find out करना है। देखो एकदम सिंपल है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिवन डेटा। तो गिवन डेटा के अंदर आप देखो हर एक न्यूमेरिकल के अंदर ऐसे ही करोगे, आप पहले गिवन डेटा मेंशन करोगे। सो इन गिवन डेटा लेंथ इज गिवन 15 मीटर, एरिया इज गिवन 6 into 10⁻⁻7 meter square and resistance R is given as a 5 ohm। चलो कैलकुलेट करते हैं। आप सबको एक रिलेशन पता है कि R इज इक्वल टू ρL डिवाइड बाई ए, और यहाँ पे पूछा भी आपसे क्या है रेजिस्टिविटी रो। सो रो विल बी RA डिवाइड बाई L, यस और नो? सो R is given as a 5, cross sectional area is in a meter square 6 into 10⁻⁻7, so no need to convert the units. In length is also given in a meter, so this is a 15 meter. So answer will be 2 into 10⁻⁻7 ohm into meter. This will be your resistivity of wire at a experimental temperature, yes or no? चलो next numerical number 3.7. A silver wire has a resistance 2.1 ohm at a 27.5 degree Celsius. Resistance 2.7 ohm at a 100 degree Celsius. तो ये मेरा रेफरेंस टेम्परेचर होगा, ठीक है। और ये फाइनल टेम्परेचर कंसिडर करूँ। फाइंड द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ वायर, ठीक है। चलो इनको कंसिडर कर लेते हैं ऐसे। यहाँ पे देखो यहाँ पे गिवन डेटा के अंदर आपको गिवन है रेफरेंस टेम्परेचर कितना है आपका 27.5। तो अपना जो इक्वेशन है ना RT इज इक्वल टू R0 1 + α_t - T0, ठीक है। तो ये रेफरेंस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है और ये आपका कौन है रेफरेंस टेम्परेचर है। तो यहाँ पे इनको मैं ऐसे भी लिखूँ, देखो रेफरेंस टेम्परेचर कितनी यहाँ पे गिवन है, रेफरेंस टेम्परेचर आपको 27.5 डिग्री सेल्सियस। तो मैं इनको T0 लिखूँ या तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि और करके T 27.5 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो ये आपकी टेम्परेचर आपको गिवन है। अभी ये टेम्परेचर पे आपका रेजिस्टर आप उनको R0 लिखो तो भी चलेगा और R 27.5 लिखो तो वो कितना गिवन है आपको 2.1 ओम। फिर देखो फाइनल कंडीशन में क्या गिवन है, तो सेकेंड टेम्परेचर आपका जो T है, ठीक है, वो कितना आपको 100 डिग्री सेल्सियस, कितना 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप इनको ऐसे भी लिखते हो ना कभी कभी T100 कितना 100 डिग्री सेल्सियस, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, दोनों में से जो भी यूज़ करना है। अब ए टेम्परेचर पे जो रेजिस्टर है उनको आप RT लिखो या तो फिर R100 लिखो, वो आप पे वो कितना गिवन है हमें, ये हमें कितना गिवन है 2.7 ओम, यस और नो? ये कितना गिवन है हमें 2.7 ओम। तो आप इक्वेशन में अप्लाई करो, अगर RT लिखोगे तो RT 2.7, R0 क्या होगा 2.1, अल्फ़ा आपको फाइंड आउट करना है T - T0, तो ये आपका T100 या तो ऐसे लिखो, देखो दोनों आप इक्वेशन ऐसे लिख सकते हो, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो एक आपका होगा RT इज इक्वल टू R0 1 + α_t - T0, और ऐसे भी आप लिख सकते हो कि जो नोटेशन मैंने रखा है यहाँ पे क्लियर उनके टर्म्स में। तो ये क्या होगा R100 इज इक्वल टू R 27.5 इंटू 1 + α T100 - T 27.5, यस और नो?
ठीक है, आपको जो भी मेथड अच्छी लगे वो आप अप्लाई करो। अब देखो यहाँ पे ना एक अल्फ़ा का डायरेक्ट इक्वेशन में लिख रहा हूँ, तो अल्फ़ा यहाँ पे क्या होगा, तो अल्फ़ा की इक्वेशन क्या होगी कि आपकी जो रेफरेंस टेम्परेचर है, देखो यहाँ पे इनको सॉल्व करके रखा है मैंने, तो ये इक्वेशन पता है ना, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट। तो अगर मैं यहाँ पे आर नॉट को अंदर मल्टीप्लाइड करूँ तो क्या होगा, आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट। अगर ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो माइनस आर नॉट अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट। सो अल्फ़ा विल बी आर टी गिवन टेम्परेचर माइनस रेफरेंस डिवाइड बाय रेफरेंस टेम्परेचर डिफरेंस। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे आपका जो अल्फ़ा होगा वो क्या होगा, गिवन आपकी यहाँ पे देखो क्या थी, गिवन टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस आर टी माइनस आर नॉट डिवाइड बाई आर नॉट, नीचे क्या होगा टी माइनस टी नॉट। अब देखो इनके लिए करोगे तो अल्फ़ा क्या बनेगा, R100 माइनस R27.5 डिवाइड बाई R27.5 T100 माइनस T27.5। यस और नो, दोनों की वैल्यू प्लेस्ड करो, सब में दोनों में आंसर आपको सेम मिलेगा। रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर मतलब 100 पे कितना गिवन है 2.7, रेफरेंस पे कितना है 2.1, रेफरेंस पे कितना है 2.1, टेम्परेचर डिफरेंस है 100 माइनस 27.5। यस और नो, सो अल्फ़ा विल बी कैलकुलेट करो तो दिस विल बी 2.7 माइनस 2.1 इंटू 72.5, this will be, so alpha will be 0.0039 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये आपको क्या मिल जाएगा, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। समझ में आ कि नहीं, ठीक है, नोटेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट नंबर 8, a heating element using a nichrome connected to 230 volt supply draws the initial current of 3.2 ampere which settle after a few seconds value to 2.8 ampere। देखो कितने सप्लाई से कनेक्ट किया है, 230 वोल्ट से, ठीक है, और इनिशियल करंट कितना है 3.2 एम्पियर एट सम रेफरेंस टेम्परेचर which settles after a few seconds to 2.8 एम्पियर। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट। आपको आफ्टर सम टाइम आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, ठीक है, और इनिशियल रूम टेम्परेचर आपको 27 डिग्री सेल्सियस लेना है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ निक्रोम एवरेज ओवर द टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्व्ड इज गिवन, ठीक है, अल्फ़ा भी आपको गिवन है। देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, देखो 3.8 गिवन डेटा क्या है, इनिशियल करंट इज गिवन 3.2 एम्पियर, ठीक है, और टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर, ठीक है, विच इज़ गिवन एज अ 27 डिग्री सेल्सियस। मैं इनको टी नॉट कंसिडर करूँ या तो आपको पता है आप इनको क्या बोलोगे, T27 कितना गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। स्टेडी करंट मतलब थोड़े टाइम के बाद, तो स्टेडी करंट आपका क्या यहाँ पे गिवन है, तो स्टेडी करंट इज़ गिवन 2.8 एम्पियर, यस और नो, और वो स्टेडी करंट पे आपकी जो टेम्परेचर होगी वो टेम्परेचर अगर मैं T कंसीडर करूँ तो वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो कि रेफरेंस टेम्परेचर है आपके पास, ठीक है, और आपको स्टेडी टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, लेकिन अपनी जो इक्वेशन है कि आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट, ठीक है, इनके अंदर आपको टेम्परेचर यहाँ पे T फाइंड आउट करना है। ये टी नॉट गिवन है, अल्फ़ा गिवन है, लेकिन ये दोनों रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, तो मैं उनको कैसे निकालूँ। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज बोला है ना, कितने वोल्टेज से कनेक्टेड है 230 वोल्ट पे, तो ए वाली कंडीशन पे और ए वाली कंडीशन पे देखो इनका रेजिस्टेंस क्या निकलेगा। तो आपको पता है ना कि रेजिस्टेंस आर किसके बराबर होगा, तो आर नॉट बोलो या तो R27 बोलो, तो वो क्या होगा, ओम्स लॉ आपके पास है ना, आप क्या लिखते थे V इज इक्वल टू आई आर, तो आर क्या होगा आपका V डिवाइड बाई आई, सो आर विल बी V डिवाइड बाई करंट कितना है यहाँ पे 3.2, तो 230 डिवाइड बाई 3.2
this will be your resistance at रेफरेंस टेम्परेचर T0 27, इनको आप R27 भी लिख सकते हो, सबको पता है ना। और कैलकुलेट करो तो 230 डिवाइड बाय 3.2 आपको क्या मिलेगा, कैलकुलेट करो तो दिस विल बी 71.875 ओम, यस और नो, ठीक है। R0 या तो R27। फिर यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस क्या मिलेगा फाइनल टेम्परेचर पे, ठीक है, RT, क्लियर, टी टेम्परेचर पे, तो वो क्या होगा 230 डिवाइड बाय करंट कितना आपका 2.8 एम्पेयर, सो दिस विल बी 82.14 ओम, दिस विल बी 82.14 ओम, यस और नो। चलो यहाँ पे सबको यूज़ करो। और आपको एक रिलेशन पता है ना, अल्फ़ा का इक्वेशन था, अभी आगे आपने लिखा था, अल्फ़ा इज इक्वल टू RT माइनस R0 डिवाइड बाई R0 T माइनस T0। तो यहाँ पे आपको T को फाइंड आउट करना है। अल्फ़ा इज़ गिवन 1.74, अल्फ़ा इज़ गिवन 1.74 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4। अगर आपको सिंपल ए वाले रिलेशन यूज़ करके यहाँ पे वैल्यू प्लेस करनी है तो भी ओके, ठीक है। आप इनको करो सब्जेक्टिव तो भी आपका वही आंसर मिलेगा। चलो, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1.7 10 टू द पावर ऑफ -4, RT 82.14, R0 71.875 डिवाइड बाय R0 कितना 82.14, T माइनस T0 आपकी कितनी है 27 डिग्री सेल्सियस, यस और नो, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ T माइनस 27 विल बी 82.14 माइनस 71.875 डिवाइड बाय 82.14 इंटू 1.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4। चलो, इनका जो भी आंसर मिले, इनका ये देखो सब्ट्रैक्शन करोगे, ठीक है, फिर डिवाइड करोगे, जो भी आंसर मिले उनके अंदर ना 27 को आप ऐड करोगे, क्लियर। तो आप इनको कैलकुलेट करो तो ये जो आंसर मिलेगा आपको मिलेगा 840.347। आप कैलकुलेट करके देखो, ये सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो T माइनस 27 इज इक्वल टू 840.347, सो T विल बी 840.347 प्लस 27, सो T विल बी 867.3 डिग्री सेल्सियस। ये आपको क्या मिल जाएगा, टेम्परेचर मिल जाएगा फाइनल, यस और नो, ठीक है। सिंपल है ना कैलकुलेशन, खाली आपको ये दोनों निकालने पड़ेंगे इनिशियली, फिर आपका सिंपल डायरेक्ट इक्वेशन है ना। चलो, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल 9 नंबर, डिटरमाइन करंट इन ईच ब्रांच ऑफ नेटवर्क शोन इन द फिगर। ये आपको देखो यहाँ पे एक नेटवर्क गिवन है ABCD 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 रेजिस्टर है, एक सोर्स है, ये कनेक्शन आपको दिया। यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन कर देना, ये एरो ना ऐसे बनेगा, ठीक है, D to C की डायरेक्शन में। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि हर एक लाइन के अंदर करंट कितना फ्लो होगा। देखो, एक सिंपल यहाँ पे आपको क्या अप्लाई करना है, KVL अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ पूरा सॉल्यूशन के साथ में। देखो, चलो, तो जैसे आप सबको पता है कि यहाँ पे हमें क्या अप्लाई करना है, KVL अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपकी अननोन कितनी है, 3 अननोन है। एक I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 I2 एंड I3, ये 3 करंट आपके अननोन है यहाँ पे, I1 I2 एंड I3। देखो, लाइव लेक्चर में मैंने ना I3 की जगह पे IG लिया था, ठीक है, तो वो आप देख लेना एक जरा। और ये देखो, ये कितना है, I इज इक्वल टू I2 प्लस I3। तो यहाँ पे हम कितनी लूप कंसिडर करेंगे, 3 लूप। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम द फर्स्ट लूप ABDA। कौन सी लूप, आपकी लूप ABDA, और मुझे वहाँ पे क्या अप्लाई करना है, सिंपल मुझे वहाँ पे KVL अप्लाई करना है ABDA के अंदर। चलो, तो ये जो कैलकुलेशन की डायरेक्शन होगी उसके अंदर, उनको हम कौन से डायरेक्शन में रखेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, तो ये आपकी कैलकुलेशन की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलो, ए से स्टार्ट करो। तो यहाँ पे देखो, करंट की डायरेक्शन और कैलकुलेशन की डायरेक्शन सेम होगी, तो उनके जो अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो 10I1 विल बी पॉजिटिव। फिर देखो, B to D के अंदर करंट की डायरेक्शन एंड साथ में कैलकुलेशन की डायरेक्शन सेम होगी,
तो उसके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा आपका पॉजिटिव। तो 5 रेजिस्टेंस है, I3 इनका करंट है, तो 5I3। फिर ए डी टू ए के अंदर, तो करंट की डायरेक्शन ए टू डी और कैलकुलेशन ऐसे जाएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन होगा। रेजिस्टर आपका 5, करंट आपका I2, तो दिस विल बी -5I2 इज इक्वल टू 0। यस और नो? चलो, तो ये इक्वेशन मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2I1 + I3 - I2 इज इक्वल टू 0, और इसको मैं नंबर दे दूँ इक्वेशन नंबर 1। ये कौन है? इक्वेशन नंबर 1। चलो, फिर सेकेंड लूप मैं कंसिडर करूँ, लूप BCDB, लूप BCDB। चलो, तो उनके अंदर केवीएल अप्लाई करना है हमें, और कौन से डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये इनके अंदर केवीएल मुझे अप्लाई करना है। यहाँ पे केवीएल अप्लाई करो इन लूप BCDB। तो देखो, B to C करंट की डायरेक्शन एंड आपकी कैलकुलेशन की डायरेक्शन सेम होगी, तो ये जो रेजिस्टर है इनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? पॉजिटिव। तो वो कितना बनेगा? 5I1 - I3 इनका करंट है, 5 रेजिस्टर, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या बना? पॉजिटिव। फिर यहाँ पे देखो, ये कैलकुलेशन की डायरेक्शन होगी ऐसे, और करंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव I2 + I3। यस और नो? फिर देखो, ये यहाँ पे B to D के अंदर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और कैलकुलेशन आपका ऐसे जाएगा क्लॉकवाइज, तो अगेन अपोजिट डायरेक्शन, तो वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? -5I3 इज इक्वल टू 0। यस और नो? इनको सिंप्लीफाइड करो, तो 5I1 माइनस, मैं पूरा कर रहा हूँ, ठीक है, 5I3 - 10I2 - 10I3 - 5I3 is equal to 0. So this will be 5I1 - 20I3 - 10I2 is equal to 0. So I can write like I1 - 4I3 - 2I2 is equal to 0, इक्वेशन नंबर 2। ये कौन है? इक्वेशन नंबर 2। देखो, यहाँ पे ये आपको क्या मिला? इक्वेशन नंबर 1, और ये आपको क्या मिला? इक्वेशन नंबर 2। अभी एक और इक्वेशन आपको चाहिए, ठीक है, तो उनके लिए कौन सा लूप कंसीडर करो? आप कोई भी लूप कंसीडर कर लो। देखो, यहाँ पे ADCEA, या तो फिर आप ABCEA लूप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, तो मैं ABCEA वाली लूप कंसीडर करता हूँ। चलो देखो यहाँ पे, तो फॉर लूप, अभी नेक्स्ट लूप कौन सा मैं कंसीडर कर रहा हूँ? लूप ABCEA। यस और नो? इनके अंदर आपको केवीएल अप्लाई करना है। देखो, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, फिर यहाँ पे लिखूँ। देखो यहाँ पे, तो इनके ABCEA, तो ये बीच वाला पोर्शन नहीं कंसीडर करोगे आप, जो रास्ते में मिलेगा उतना ही कंसीडर करना है। तो A to B कैलकुलेशन मेरा क्लॉकवाइज होगा, तो इनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव होगा, कितना होगा? 10I1। फिर देखो यहाँ पे B to C, तो उनके अंदर भी मेरी कैलकुलेशन क्लॉकवाइज होगी, और करंट भी सेम डायरेक्शन में, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? 5 × I1 - I3। फिर यहाँ पे कौन सा टर्मिनल मिलेगा आपको? नेगेटिव, तो -10। और इनके अंदर जो करंट I है, वो करंट कौन है? I इज इक्वल टू I1 + I2। यस और नो? यहाँ पे I1 I2 I3 है, तो मैं 10 × I1 + I2 करूँगा वहाँ पे, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट क्या होगा? 10I1, इनका वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव, फिर इनका 5 × I1 - I3 पॉजिटिव, -10, ठीक है, और फिर ये सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो 10I1 + I2 इज इक्वल टू 0। यस और नो? ये मिल गया कि नहीं आपको? चलो सिंप्लीफाइड करो, तो दिस विल बी 10I1 + 5I1 - 5I3 - 5I3 -10 + 10I1 + 10I2 इज इक्वल टू 0। मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25I1 - 5I3 + 10I2 इज इक्वल टू 10। ये राइट साइड में गया, यस और नो? डिवाइड बाई 5 करो, सो दिस विल बी 5I1 - IG + 2IG नहीं I3 + 2I
टू इज इक्वल टू टू। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। देखो मैंने आपको बोला था ना, मैंने लाइव लेक्चर के अंदर I3 की जगह पे क्या लिखा था, IG, लेकिन हमें यहाँ पे क्या रखना है, I3 रखा है मैंने। ठीक है, चलो उनको गैल्वेनोमीटर का रिप्लेसमेंट कंसीडर करके हमने किया था वहाँ पे। चलो तो ये 3 इक्वेशन मिल गए आपको। कौन से 3 इक्वेशन? एक फर्स्ट, सेकंड और ये आपकी थर्ड। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर मैं देखूँ यहाँ पे, तो मैं ऐसे लिखूँ यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मुझे देखो I2 में किसके बराबर लिख सकता हूँ, तो I2 इज इक्वल टू 2I1 प्लस I3। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ I2 इज इक्वल टू 2I1 प्लस I3। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 4। अब देखो यहाँ पे ये जो आपका इक्वेशन नंबर 4 है, उनको आपको कहाँ पर रिप्लेस करना है, उनको आप रिप्लेस करोगे इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो देखो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, तो यूजिंग इक्वेशन 4 देखो यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन 4 इन सेकेंड, फर्स्ट ये करते, ठीक है, फिर इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, यस और नो। चलो तो आपकी देखो पहले इक्वेशन में लिख दो 2I1 माइनस 4I3। देखो जिसको ना सिंप्लीफिकेशन करना नहीं आता उनके लिए, सॉल्व नहीं करना आता उनके लिए, चलो I2 की जगह पे मुझे क्या लिखना है, 2I1 प्लस I3, और इक्वेशन 3 क्या है, 5I1 माइनस I3 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 2। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि आपका ये जो I2 है ना, उनकी जगह पे ये वाली वैल्यू रिप्लेस करनी है। क्लियर? चलो तो सिंप्लीफिकेशन में करूँ, ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, थोड़ा आपको लंबा लगेगा लेकिन स्टेप बाय स्टेप हो रहा है तो आपको सब समझ में आ जाएगा। सो I1 माइनस 4I3 माइनस 2, I2 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2I1 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। यस और नो? सिंप्लीफाइड करो, I1 माइनस 4I3 माइनस 4I1 माइनस 2I3, ये फिजिक्स का मैथमेटिक्स ज़्यादा लगता है ना आपको, माइनस 3I1 माइनस 6I3 इज इक्वल टू 0। सो I1 प्लस 2I3 इक्वेशन नंबर 5। चलो फिर यहाँ पे इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 3, तो 5I1 माइनस I3 प्लस 2, I2 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2I1 प्लस I3 इज इक्वल टू 2। यस और नो? सिंप्लीफाइड करो, 5I1 माइनस I3 प्लस 4I1 प्लस 2I3 is equal to 2. So this will be 9I1 plus I3 is equal to 2 and this will be your equation number 6. ये आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 6। अभी आप क्या करोगे, तो अभी आपको सिंपल क्या करना है कि इक्वेशन 5 एंड 6 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्विंग इक्वेशन 5 एंड 6 कैसे सॉल्व करोगे, चलो तो I1 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे, यस और नो? चलो फिर ये क्या होगा, 9I1 प्लस I3 इज इक्वल टू 2। चलो ये इक्वेशन को क्या करूँ, मल्टीप्लाइड बाई 2 करूँ, ठीक है, और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये 9 का क्या हो जाएगा, 18I1, ये क्या बन जाएगा 2I3 और ये क्या बन जाएगा 4। ठीक है, फिर देखो इनका सब्ट्रैक्शन ले लो, तो ये क्या होगा, माइनस 17I1, ये कैंसिल, इज इक्वल टू माइनस 4। सो I1 विल बी 4 डिवाइड बाई 17 एम्पियर। तो ये आपको करंट I1 मिल गया। ठीक है, फिर देखो I3 मिलेगा ना, ये दोनों इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन के अंदर I1 की वैल्यू रिप्लेस करो तो आपको क्या मिल जाएगा, I3। तो मैं यहाँ पे कर दूँ, ये इक्वेशन के अंदर I1 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 0। सो I1 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 0। सो आई कैन राइट लाइक दिस, 2I3 इज इक्वल टू माइनस I1। सो I3 विल बी माइनस I1 डिवाइड बाई 2। तो I1 इज
4 divided by 17 into 1 divided by 2. So this will be minus 2 divided by 17 एम्पियर. ये क्या मिलेगा आपको I3. ये आपको क्या मिल जाएगा I3. क्लियर. चलो फिर नेक्स्ट एक कौन बाकी रहा I2. तो I2 के लिए देखो कौन सी इक्वेशन ये रही 2I1 प्लस I3. तो I2 इज इक्वल टू 2I1 प्लस I3. चलो तो 2 4 डिवाइड बाई 17. I3 कितना है माइनस 2 डिवाइड बाई 17. सो दिस विल बी 8 डिवाइड बाई 17 माइनस 2 डिवाइड बाई मतलब 6 डिवाइड बाई 17 एम्पियर. सो दिस विल बी और I2. अब देखो आपको हर एक करंट की वैल्यू मिल गई. आपको यहाँ पे हर एक करंट की वैल्यू मिल गई तो उन सबको ब्रांच के अकॉर्डिंग ऐड करो. ठीक है, समझ में आ कि नहीं आपको. चलो तो यहाँ पे तो देखो कितना I1 है, यहाँ पे कितना I2, लेकिन यहाँ पे कौन है I1 माइनस I3. तो आप क्या करोगे I1 माइनस I3 कर दोगे वहाँ पे. ठीक है, और यहाँ पे क्या करोगे I2 प्लस I3. तो ये DC का करंट मिलेगा और यहाँ पे आपको BC का करंट मिलेगा. यस और नो, समझ में आ कि नहीं. चलो in a meter bridge balance point is found to be at a distance of 39.5 centimeter from the end A. When the resistor Y is of 12.5 ohm, determine the resistance X. Why are the connection between resistor in a Wheatstone meter bridge made of thick copper strip. ये देखो इसका मतलब पता है, मैंने आपको काफ़ी 2 बार वहाँ पे एक्सप्लेन किया था पोटेंशियोमीटर के अंदर, मीटर ब्रिज के अंदर भी, कि इनके लिए क्या होगा कि R इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए. अभी आपकी जो स्ट्रिप होगी उनका एरिया ज़्यादा होगा तो उनका रेजिस्टेंस क्या रहेगा कम. इसीलिए आप क्या प्रेफर करते हो स्ट्रिप की ज़्यादा एरिया वाली, तो रेजिस्टेंस कम बने. डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ ब्रिज इफ़ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज. ठीक है, तो फर्स्ट कैलकुलेशन कर लेते ए के लिए. तो देखो यहाँ पे ना मैंने लाइव लेक्चर के अंदर जैसे आपको करवाया था वैसे ही यहाँ पे नोट्स रखी है मैंने, तो वो आपको सॉल्व करवा देता हूँ. तो यहाँ पे देखो ये आपकी मीटर ब्रिज है, यहाँ पे रेजिस्टर एक्स और यहाँ पे कौन है रेजिस्टर वाई. ये जो रेजिस्टर एक्स है वो कितना 8.16 ओम और ये कितना है 12.5 ओम. तो आपको फर्स्ट टाइम नल पॉइंट यहाँ पे मिला मतलब 39.5 सेंटीमीटर पे. तो बाकी की जो लेंथ होगी वो क्या होगी 100 माइनस 39.5, तो वो कितना होगा आपका 60.5. यस और नो. ठीक है, तो आपको पता है ना कि आपने मीटर ब्रिज के अंदर एक इक्वेशन डिराइव किया था कि रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस x डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2. तो ये कौन है आपकी लेंथ L1 है और ये कौन है L2. तो x बाई वाई इज इक्वल टू L1 बाई L2. L1 39.5, L2 कितना होगा 100 माइनस 39.5 मतलब कितना होगा 60.5. तो x आपको फाइंड आउट करना है ना, x क्या होगा y इंटू 39.5 डिवाइड बाई ये कितना होगा आपका 60.5. क्लियर, y की वैल्यू मैंने रख दी 12.5. तो x मुझे क्या मिला 8.16 ओम. आपको x कितना मिला आपको 8.16 ओम रेजिस्टर मिला x का. ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पे देखो आपको ना क्या करना है x एंड y को इंटरचेंज करना है कि x को यहाँ पे लेके जाओ और y को यहाँ पे. तो आपकी जो नल पॉइंट होगी उसके अंदर क्या चेंज होगा, तो नल पॉइंट भी बदल जाएगा. देखो तो y यहाँ पे आ गया, x यहाँ पे. ठीक है, तो ये नल पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे मिलेगा उनको आपको फाइंड आउट करना है. तो ये y और ये x, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि y डिवाइड बाई x इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई 100 माइनस L1. यस और नो. जैसे यहाँ पे फार्मूला आपने x बाई वाई के लिए अप्लाई किया था वैसे यहाँ पे किसके लिए होगा y डिवाइड बाई x, L1 डिवाइड बाई 100 माइनस L1. आपके पास y की भी वैल्यू है, आपके पास x की भी वैल्यू है, तो आप सिंपल कैलकुलेशन करो. आपको L1 फाइंड आउट करना है. सो L1 विल 60.5 सेंटीमीटर. समझ में आ कि नहीं सबको, यस और नो. चलो फिर नेक्स्ट देखो 60.5 पहले ये वाली लेंथ थी ना, तो नल रेजिस्टेंस चेंज करने से इनकी नल पॉइंट भी बदल गई. फिर देखो लास्ट में एक बोला कि गैल्वेनोमीटर सेल को बदलोगे. ठीक है, तो आपको वहाँ पे नल पॉइंट नहीं मिलेगी, बैलेंस पॉइंट नहीं मिलेगी और आपकी गैल्वेनोमीटर का भी कोई डिफ्लेक्शन वहाँ पे होगा नहीं. चलो फिर नेक्स्ट. A storage battery of EMF 8 volt and internal resistance of 0.5 ohm
is being charged by 120 volt DC supply using a series resistor of 15.5 ohm. What is the terminal voltage of the battery during the charging? अब देखो टर्मिनल वोल्टेज V का इक्वेशन याद है कि नहीं आपको? ठीक है, वहाँ पे हमने V किसके बराबर लिखा था? V इज इक्वल टू E माइनस आई आर. तो मैंने वहाँ पे बोला था ये कौन सा है? डिस्चार्जिंग का इक्वेशन है. ठीक है, कि बैटरी जब आपकी डिस्चार्ज करेगी तो ये वाले रिलेशन, लेकिन अगर चार्जिंग होगा तो क्या होगा? E प्लस आई आर. तो ये कौन सा इक्वेशन होगा? चार्जिंग का इक्वेशन होगा. तो ये आपकी बैटरी यहाँ पे क्या करेगी? ये जो आपका सेल है, ठीक है, वो क्या करेगा? डिस्चार्ज करेगा. ये क्या करेगा? आपका डिस्चार्ज करेगा. और इनका क्या होगा? चार्जिंग होगा. तो इनका चार्जिंग हो रहा है तो उनके लिए आपको टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप निकालना है. तो उनके लिए क्या बनेगा? E प्लस आई आर. ठीक है, लेकिन उनके लिए देखो आपको करंट तो निकालना पड़ेगा ना. और ये दोनों कौन से नेचर में? रिवर्स नेचर में. ठीक है, तो आपने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए देखा था कि अगर दो सेल का कनेक्शन ए वाला बनेगा, ठीक है, तो इनकी EMF क्या होगी? E1 और E2. तो EMF क्या होगा? E1 प्लस E2. लेकिन अपोजिट होगा तो सब्ट्रैक्शन करते थे. तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे क्या होगा? आपका सब्ट्रैक्शन ही होगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो नेट EMF होगी, ठीक है, क्लियर, इफेक्टिव EMF कितना रहेगा आपका? E1 माइनस E2. E1 कितना आपका? 120 माइनस 8 मतलब 112 वोल्ट. क्लियर, ये आपकी इफेक्टिव EMF रहेगी. तो करंट आपका क्या मिलेगा? तो यहाँ पे देखो आपकी रेजिस्टर, ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में? यहाँ पे दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में. ठीक है, तो करंट आपका क्या होगा? I इज इक्वल टू इफेक्टिव EMF, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस. चलो, इफेक्टिव EMF तो आपने निकाला 112. टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? दिस प्लस दिस मतलब 15.5 प्लस 0.5 प्लस 15.5 मतलब R प्लस R. यस और नो? तो दिस विल बी 112 डिवाइड बाय 16. सो करंट विल बी 7 एम्पियर. करंट आपको कितना मिलेगा? 7 एम्पियर के बराबर. यस और नो? ठीक है, करंट आपको क्या मिलेगा? 7 एम्पियर. चलो, आपको करंट मिल गया. तो आप देखो टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस सेल 1V 2V निकाल सकते हो चार्जिंग में जो है. ठीक है, उनके लिए. तो देखो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस सेल 2 विच इज़ इन चार्जिंग कंडीशन. ठीक है, यस और नो? तो वो क्या होगा? V2 इज इक्वल टू E2 प्लस आई आर. यस और नो? ठीक है, चलो, उनका EMF कितना है? 8. करंट कितना मिला आपको? 7. इंटरनल रेजिस्टेंस उनका कितना है? 0.5. सो दिस विल बी 11.5 वोल्ट. सो दिस विल बी आर V2. समझ में आ कि नहीं आप सबको? यस और नो? सिंपल है ना एकदम. चलो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल. इन पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट अ सेल ऑफ EMF ऑफ 1.2 वोल्ट. तो देखो सेल और उनका EMF कितना है? 1.25 वोल्ट. यस और नो? बैलेंस पॉइंट उनके लिए कहाँ पे मिला? बैलेंस पॉइंट कहाँ पे मिलती है? 35 सेंटीमीटर पे. क्लियर. अगर मैं इनको E1 बोलूँ और उनकी जो बैलेंस्ड पॉइंट है उनकी लेंथ को L1 बोलूँ. ठीक है, फिर देखो इफ़ द सेल इज़ रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल एंड बैलेंस पॉइंट इज शिफ्ट टू 63 सेंटीमीटर. कि यहाँ पे इनकी जगह पे कोई दूसरा सेल है जिसका EMF हमें पता नहीं है, और लेकिन बैलेंस्ड पॉइंट कहाँ पे गया? 63 सेंटीमीटर पे. तो देखो आप सबने एक पोटेंशियोमीटर की फर्स्ट एप्लीकेशन देखी थी ना. फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था? कि E1 डिवाइड बाई E2 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2. सेल का EMF कंपेयर किया था. तो E2 यहाँ पे क्या होगा? E1 L2 डिवाइड बाई L1. E1 कितना आपका? 1.25. L2 कितना है? 63. L1 कितना आपका? 35. तो आपका जो सेकेंड सेल होगा उनका EMF आपको क्या मिलेगा? तो दैट विल बी 2.25 वोल्ट. वो आपको क्या मिलेगा? 2.25 वोल्ट. क्लियर, यस और नो? तो ये सेकेंड सेल की आपको क्या मिल जाएगी? EMF. एक सिंपल ये फार्मूला आपने लर्न किया था. यस और नो? चलो फिर लास्ट न्यूमेरिकल.
13. The number density of free electron in a copper conductor estimated to 8.5 into 10 to the power of 28 per meter cube. The number density of free electron n given 8.5 into 10 to the power of 28 per meter cube. How long does an electron take to drift from one end of wire of 3 meter long? देखो वायर की लेंथ कितनी है 3 मीटर. To its other end, cross sectional area of wire is given 2 into 10 to the power of minus 6 meter square. Yes or no? Clear? And carrying current of I is equal to 3 एम्पियर. तो आपको क्या यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि ये वायर के अंदर जो मानो कि ये 3 मीटर की एक वायर है, ठीक है, तो इनके अंदर आपकी जो इलेक्ट्रॉन होगी वो एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कितना टाइम पीरियड लेगी. अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ड्रिफ्ट होके जा रही है ये वाली डायरेक्शन में, तो इनको यहाँ पे जाने का टाइम पीरियड आपको निकालना है. यस और नो? चलो, तो इनका इक्वेशन आप सबको याद है कि नहीं है? एक इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन पता है कि आपने एक करंट डेंसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक इक्वेशन डिराइव किया था, याद है कि नहीं? J इज़ इक्वल टू क्या था? एनी वी डी. यस और नो? चलो मैं जूम आउट कर लेता हूँ. J इज़ इक्वल टू एनी वी डी था, लेकिन यहाँ पे देखो आपको पता है कि आपकी करंट डेंसिटी किसके बराबर होगी? I डिवाइड बाई A के बराबर. तो J की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? ये भाई बंद कर हिलना. J की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? I डिवाइड बाई A, एनी वी डी. अब देखो वी डी कौन है? आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी क्या होगी? डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाई टाइम पीरियड. तो ये डिस्टेंस किसके बराबर ट्रैवल करेगा? लेंथ ऑफ कंडक्टर के बराबर डिवाइड बाई टाइम पीरियड. ठीक है, तो इनकी जगह पे आगे जाके हम क्या लिखेंगे? L डिवाइड बाई टी. एनी वी डी की जगह पे क्या आ जाएगा? L डिवाइड बाई टी टाइम पीरियड. देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है? टाइम पीरियड टी फाइंड आउट करना है कि नहीं? ठीक है, तो टी को सब्जेक्टिव बना दो. तो T विल बी एनी L A डिवाइड बाई I. चलो सबकी वैल्यू को प्लेस करो यहाँ पे. N कौन है? नंबर डेंसिटी आपको गिवन है, सब गिवन है. 8.5 10 टू द पावर ऑफ 28. 8.5 10 टू द पावर ऑफ 28. E कौन है? चार्ज ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19. L इज़ लेंथ ऑफ कंडक्टर दैट इज़ 3 मीटर. ठीक है, एंड A is cross sectional area of conductor that is given as 2 into 10 to the power of minus 6 divided by current will be 3 ampere. So time period will be T will be 2.72 into 10 to the power of 4 second. ये आपको क्या मिलेगा? टाइम पीरियड मिलेगा. कौन सा टाइम पीरियड? एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ए वाले एंड से लेके यहाँ पे जाने का टाइम पीरियड, यहाँ से लेके ये वाला टाइम पीरियड. क्लियर? आप सबको समझ में आना अच्छे से. तो ये आपका 3rd यूनिट का एक्सरसाइज था. ठीक है, तो उनके सारे नंबरिकल्स हमने यहाँ पे ख़त्म किए. आप प्रैक्टिस कर लो. ओके, चलो बाय, हैव अ गुड डे.